Kashmir News Service presents. Hello and welcome. I'm Sajad and you're watching Kashmir News Service. You know, every day we are going to new people who are sitting in the administration. We try to raise the issue of the people. And today we are in the office of Power Development of Kashmir Corporation Limited because we feel it's important to have adequate electricity in the winters. But we know as the winter begins, the demand for electricity grows and the power development fails to ensure adequate transmission capacities to meet the demand. However, it's also true that it has been challenging for the power development department to ensure adequate electricity in the winters. They are going through a lot of challenges, but why the department is not doing enough to ensure adequate electricity to the consumers. Today we have with us here the Chief Engineer of Power Development Department. So we will just go and ask him a couple of questions. What are the challenges they are facing at the moment? Sir, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमने देखा कि आपको बहुत सारी कॉल्स भी आ रही है. हमने देखा कि आप बहुत ज़्यादा बिजी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला. तो पहले ये सवाल आपसे होगा कि विंटर चल रहा है, आपकी मुश्किलातें बहुत ज़्यादा है और लोग भी ज़्यादा काफ़ी परेशान है. इफ़ यू सी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट power cuts, unscheduled power cuts. They are reeling under the darkness and complaining about the unscheduled power cuts. How you are going through these Thank challenges? you for coming and taking me in your program. So regarding availability of electricity, this year we have an availability of 1500 megawatts. Vis-a-vis what you are saying that we are not giving sufficient power to people. I have an agremented load of total 1442 megawatts for the Kashmir Valley. Against an agremented load of that much quantity, I am supplying 1500 megawatts in the peak hours of morning and evening. That way, going by agremented load, we are providing sufficient power. But now coming to the actual demand, which people use, they don't use electricity as per the need. At times they use it unjudiciously. Actually, Kindly listen. what to we me. see in winters, there are usage of electric gadgets. Listen to me. I have a unaccounted demand of 2200 megawatts in the system. That way I am short by 700. This 700 megawatts is the use of electricity which is not done by the people judiciously. I have been requesting people off and on through various medias, through papers, through radio that kindly desist from overloading the system in the peak hours of morning and evening so that we are able to give better and better electricity to the people. But so far there has been cooperation, but not to the extent which I was expecting. तो अभी डिमांड कितनी है इलेक्ट्रिसिटी की और आपकी जो जनरेशन कितनी हो रही जो है? अभी हमारी अनरेस्ट्रिक्टेड डिमांड है ना, दैट इज 2200 मेगावाट्स. और जो हमें सिस्टम की अवेलेबिलिटी है एट द ग्रिड लेवल्स एट 220 केवी लेवल, जो मेरी अवेलेबिलिटी है वो है अराउंड 1500 मेगावाट्स. तो अगर ये कहें कि जो कंज्यूमर्स मतलब डिमांड आपने बोला 2200 के करीब है, तो क्यों हम ऐसा नहीं कर पा रहे? क्यों वो उनकी डिमांड तक हम नहीं पहुंच पा रहे? बेसिकली क्या होता है, सिस्टम इज डिजाइन विज एग्रीमेंटेड लोड. क्योंकि हमारा एग्रीमेंटेड लोड ही कम है. वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग पीपल टू कम. हमने 4 साल पहले एक KYC वॉलंटरी डिस्क्लोजर लोड प्रोग्राम शुरू किया था, बट उसमें हमें लीस्ट वी गॉट ओनली 5% कॉपरेशन. ओनली 5% पीपल declared their load voluntarily. People are here somehow resistant in declaring their loads what they use during the winter. If they come out and declare voluntarily their load accordingly, in a year or in 1.5 years we can design our system so that in winters we are able to cater to the full demand of the people. Number 2, we are having only 40% metering throughout the valley. Because of meters, people do use load judiciously. Wherever we have complaint metering, people are using electricity judiciously. There is a massive program going on through Ministry of Power, Government of India about metering 100% of the areas of the Kashmir. Once metering is done 100%, I am sure, and that is our calculation also, that those are our statistics also, demand will come down to only 1600 megawatts. And in next couple of years, we are adding another 400 megawatts. That means once metering is done and other system augmentations are done at 220 level, we will be having surplus power in next 2 years in the valley.
ये जो मीटर्ड एरियाज एंड अनमीटर्ड एरियाज है, मीटर्ड एरियाज की जो जितने भी एरिया आपके मतलब जितने भी लोग हैं जो मीटर्ड एरिया में आते हैं और नॉन मीटर्ड एरिया को कितनी अभी बिजली सप्लाई हो रही है और जो नॉन मीटर्ड? इन श्रीनगर we are supplying, we have a curtailment hour of 3 slots of 1.5 hours each, except very few receiving stations in south of city and in Baspora side, where curtailment is 6 hours. Normally we are sitting to our schedule of 1.5 hours. अब बीच में क्या हो जाता है, at times there is overloading of the feeder and it trips automatically on overload. It is not a curtailment, but it is basically because of system safety. Feeder trips at times, then it takes 15-20 minutes in making a proper protocol for its restoration. People think it as an additional cut. It is not an additional cut, it is a cut because of overloading in the system. This year we are facing critical overloading of the system. Our demand should have been only 2000 megawatts, but it has gone up to 2200. In Srinagar non-metered areas we have a curtailment schedule of 3 slots, 2.5 megawatts each. आपने कहा कि जो अभी डिमांड है वो तकरीबन 2200 के करीब है, तो अगर डिमांड उतनी है तो अपनी रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है। सुनो मेरी बात, बेसिकली वी हैव हियर मैक्सिमम फ्लैट, जो मैंने बोला 60% आवर कंज्यूमर्स आर फ्लैट रेट, दे हैव अ फिक्स्ड स्लैब ऑफ रेवेन्यू। नाउ वी आर गोइंग फॉर सिलेक्टिव रिविजन्स। हम लोगों को है ना, वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड हुकानोमीटर। हुकानोमीटर से हम लोगों के सर्विस लाइन का लोड चेक करते हैं, फिर जिनका हमका लोड आता ओनली वी टेक ए डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ 40%। अगर किसी के घर में पीक आवर में 8 किलोवाट या 6 किलोवाट लोड चल रहा है तो उसका हम डाइवर्सिटी फैक्टर लेते हैं 40% ओनली, एंड वी इंक्रीज स्लैब अकॉर्डिंगली टू 1 किलोवाट और 2 किलोवाट। तो बट इन सम केसेस आफ्टर गोइंग फॉर इंस्पेक्शन हम पूरे 2 किलोवाट फिर रिवाइज नहीं करते हैं उनको एक ही गो में। अगर उसका एग्रीमेंटेड लोड है 0.75, वी रेज इट टू ओनली 1 है, वी रेज इट टू 1.25 एंड वी गिव अ अपवर्ड रिवीजन ऑफ ओनली 1 स्लॉट। सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो खंभों पे तारें अटकी हुई या कहीं पर ट्रांसफार्मर्स बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उनका जो रिपेयरमेंट वक्त पे नहीं हो रहा है, तो कंप्लेंट्स भी बहुत आ रही है कि जैसी बर्फ़ पड़ती है तो ज़्यादा मुश्किलातें पैदा हो रही है लोगों को, तो इस हवाले से आप अगर आप देखेंगे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर पहले के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे अगर ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो 48 आवर्स में ठीक कर दे, अगर अर्बन एरियाज में हो जाता है सिटीज़ में तो विद इन 24 आवर्स में, लेकिन ऐसा ग्राउंड पे बिल्कुल भी नहीं हो। नहीं, आई विल नॉट एग्री विद यू। इस पे ग्राउंड पे ऑलमोस्ट बिली हो रहा है, एक्सेप्ट 2 वहाँ पे जगहों पे जहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपीटेडली फेल होता है। वी ट्राई टू मेंटेन आवर दीज टाइम्स ऑफ 24 आवर्स एंड 48 आवर्स। वहाँ पर हमें ये टाइमलाइन मीट नहीं होती है, जहाँ पर यहाँ हमने ट्रांसफार्मर ले लिया बिकॉज ऑफ ओवरलोड इन दैट एरिया दोबारा जल जाता है। बाकी हमारे पास इस बार ऑनरेबल HLG की इंस्ट्रक्शन है, वी हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फ्रेश ट्रांसफार्मर्स। तकरीबन 500 ट्रांसफार्मर हमारे पास फ्रेश आए थे, उनमें से 200 तो कभी हमने इशू किए हैं इलाकों में। इसी तरह जो हमारे पास ट्रांसफार्मर अपने थे खराब पड़े थे उनको हमने ठीक किया। वो है रिप्लेसमेंट बफर ऑफ 700 ट्रांसफार्मर। अभी भी मेरे पास तकरीबन उनमें से भी तकरीबन 200 इस्तेमाल हो गए 2 महीनों में। वो है स्टिल एक्सेप्शन बफर ऑफ। सर मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है कि अगर आप चाहे तो मैं बता भी सकता हूँ कि एक पोल की वजह से ट्रांसफार्मर 1 सालों से पड़ा हुआ है, कहीं पे थोड़ी सी तार वहाँ पे वायर में की जो कमी है उसके लिए ट्रांसफार्मर 2 सालों से पड़ा रहा है। आपको मेरे ख्याल में आपका जो है ना इशारा REPDRP स्कीम की तरफ है। REPDRP स्कीम यहाँ इम्प्लीमेंट हो गई थी 2014 में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर बैकड्राफ्ट हो गया 18 में उस स्कीम पर काम रुक गया। बहुत जगह कुछ ट्रांसफार्मर लगे हैं जो इनकम्प्लीट रह गए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कहीं कहीं पर, अब अगर हम उसमें प्रॉपर प्रोटोकॉल बनाते हैं डिपार्टमेंटल, उनको हम एनर्जाइज करते हैं बाज़ाब्ता बाकी काउंटर एजेंसी से इजाज़त लेके, जल्दी इसका दोबारा ऑर्डर हो रहा है और ये जो आप इनकम्प्लीट काम रहे हैं उन पर जल्दी दोबारा काम शुरू हो। सर हकीकत ये भी कि कश्मीर जियोग्राफिकली एक डिफरेंट लोकेशन है कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ द इंडिया। यहाँ पे उतना ज़्यादा काम आसान नहीं कर रहा है जो कि आपके मुलाजिम करते हैं बर्फ़ की वजह से या बाकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें जो पावर थेफ्ट या अनरजिस्टर्ड यूजर्स है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पावर थेफ्ट बहुत एक बड़े पैमाने पे हो रहा है। पावर थेफ्ट में बोलूँगा मिसयूज़ ऑफ पावर। थेफ्ट भी मैं नहीं बोलूँगा, सारे थेफ्ट नहीं करते हैं। मिसयूज़ ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है, बड़े कम लोग हैं जो थेफ्ट में इन्वॉल्व होते हैं।
तो Misuse, हाँ, मिसयूज़ में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए। तो एक चीज़ है, मेरे 18 डिवीज़न है, 18 डिवीज़नों में से 25 सुकार्ड और निकलते हैं, 6 सुकार्ड और निकलते हैं एससीज के, और मेरा एक सुकार्ड, ये हो गए 25 सुकार्ड। 25 सुकार्ड हर दिन निकलते हैं जो इंस्पेक्शन करते हैं फॉर इलीगल लोड, जो इंस्पेक्शन करते हैं। किसी ने दूसरी सर्विस नहीं तो लगाई है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, हर दिन हमारे फ़ोटोग्राफ्स अपलोड होते हैं, जो हमने क्रूड गैजेट्स कितने जो सीज़ किए उनको हम तोड़ते हैं, उनको हम लोगों के सामने तोड़ते हैं ताकि वो दोबारा न इस्तेमाल किए जा सकें। ये ड्राइव बराबर चालू है। आपका ये कहना गलत है अगर कोई मिसयूज़ करता है, इलीगल यूज़ करता है, कि उनके खिलाफ शिकायत नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ मेरी बात सुनो मेरी, अलबत्ता इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और इंस्पेक्शन सुकार्ड हमारे पास स्टाफ जो है ना लिमिटेड है, जो इंस्पेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अलबत्ता ये ड्राइव बराबर जारी रहेगी। तो हम भी बैठने वाले नहीं हैं। जो ये मिसयूज़ करते हैं, इलीगल यूज़ करते हैं बिजली का, या अगर कोई अनरजिस्टर्ड है उनको भी हम ट्रेस करते हैं और बाज़ाब्ता उनका हम रजिस्टर करते हैं कनेक्शन, और इलीगल लोड्स वालों को हम फाइन भी करते हैं और उनको एनहांसमेंट ऑफ एग्रीमेंट भी होता है। सर, अभी हम कोविड से पूरी तरह बाहर नहीं आए, वी आर स्टिल कमिंग आउट ऑफ दिस कोविड एंड इट हैज़ डीपली अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ द एवरी कश्मीर की भी इकोनॉमी से सेटबैक एक हुआ है। तो लोग जो आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है फ़ी, उसके नज़रिए में आप जो कनेक्शंस उनका मतलब डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो लोगों के पास अभी जो इकॉनमी में वापस वो ट्रैक पे नहीं आ रही। तो इस हवाले से जो लोगों को क्या कोई राहत नहीं मिल सकती है कि थोड़ा कोई उनको पीरियड मिल जाए ताकि वो जो इतनी भी फीस उनकी आउटस्टैंडिंग है वो फिर इंस्टॉलमेंट्स या बाकी चीज़ के हवाले से कर दे? ये जो है ना आउटस्टैंडिंग ड्यूज़, ये गवर्नमेंट का कॉरपोरेशन का फीस जो बकाया है, इसमें मैं एज चीफ ने डायरेक्टली आई कैन नॉट गिव एनी कंसेशन। अलबत्ता अगर कोई कोविड पेशेंट होता है, हम डिस्कनेक्शन के लिए गए, उसमें भरा नहीं, तो उस वाले बिजनेस यूनिट बंद थे, बाकी मेरी बात इन जनरल हम कंसेशन नहीं देते हैं, बट इन पर्टिकुलर कोई केस है रिलैक्सेशन, कोई कोविड का बीमार है, उसका बिजनेस कोविड की वजह से रुका गया, उन पर्टिकुलर केसेस में उनको हम थोड़ी रिलैक्सेशन देते हैं। वी गिव देम सम टाइम मोर टू डिपॉजिट देयर ड्यूज। सर, और एक इम्पोर्टेंट कंसर्न, आपके जो कैजुअल लेबर्स है जो अपनी जान जोखिम में डाल के बाहर निकलते हैं, लोगों को बांडीपोरा की थी जहाँ पे एक बंदा ऐसा है कि ही हैज़ लॉस्ट आई मीन पार्शली ही डैमेज्ड हो गया है, तो अब वो बेचारा ऐसे ही रहा। क्या उनके लिए कोई ऐसी अटेंशन उनको क्यों नहीं मिल रहा है? बेसिकली इनके लिए हम जल्दी एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ला रहे हैं, तो वो प्रपोजल ऑलरेडी हमने बनाया है। ये सारे जो हमारे कैजुअल लेबर्स हैं जिनको आप बाज़ाब्ता रेगुलर हर महीने वेजेस मिल रहे हैं, डेली वेजेस के हिसाब से 7,500 के लगभग, तो इनको हम जल्दी टू मेक देम मोर सिक्योर। पहले हमारी कोशिश यही थी कि डिपार्टमेंट ने एक बाज़ाब्ता एक SOP बनाया। SOP जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये एक्सीडेंट ऑलमोस्ट इंशाल्लाह ख़त्म ही नेग्लिजिबल हो जाएंगी, 0 लेवल पे आएंगी। उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता बिकॉज ऑफ एनी मिसहैप कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, दे विल बी प्रॉपरली कवर्ड अंडर इंश्योरेंस, और वो जल्दी उसका अप्रूवल होके इनको हम इंश्योरेंस कवर में ले आएंगे। तो आखिर पर आपके लोगों की, या पहले मैं ये भी पूछना, क्या कोई टोल फ्री नंबर आपके लिए कोई ऐसा जहाँ पे कोई इशू मसला होता है, तो हम चाहते हैं कि वो टोल फ्री नंबर पे आप शेयर करें, और आखिर पर आपकी मैसेज जो लोगों के लिए अपने मुलाजमीन के लिए हम चाहते हैं वो भी आप शेयर करें। मैं अपने पहले मुलाजमीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पिछले 2 महीनों में अनथक मेहनत की, और जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंस्ट्रक्शन थी, एडवाइज़र साहब की इंस्ट्रक्शन थी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि ट्रांसफार्मर को रूरल एरियाज़ में 48 घंटे, अर्बन एरियाज़ में 24 घंटे में रिप्लेस किया जाए, उसको हम इम्प्लीमेंट करने में बहुत हद तक कामयाब हो गए। मैं आपको ये बोलूँगा, जो पिछले साल के नेट एवरेजेस होते थे आउटेजेस एट द एंड ऑफ डे, वो हमें 350 के करीब होते थे हर दिन हमारे ड्यूटी आउट। इस बार जो हमने आउटेजेस की रेट रही है, वो किसी भी दिन हमें नेट आउटेजेस मोर देन 50 नहीं थे सिस्टम में। दैट मीन्स अगर मेरे 18 डिवीज़न है और स्पेशल सब डिवीज़न एक, तकरीबन यही है 2 के आसपास से किसी डिवीज़न में ट्रांसफार्मर आउट रहे हैं। पहले ये 15 भी होते थे, और दूर दराज इलाकों में थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगता था। एक तो वो है, उसमें मैं अपने पूरे इंजीनियरिंग स्टाफ, नॉन इंजीनियरिंग स्टाफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। नंबर 2, गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इस बार हमें पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला,
जिससे हम ये एफर्ट्स ले सके कि हम टाइमली वर्कशॉप। लेकिन सर इसमें भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई कि लोग खुद पैसा जमा करते हैं, फिर गाड़ी ढूंढते हैं, फिर एक मिनट आपके पास ये कंप्लेंट गलत है। मैं बार बार अखबारों में जाता हूँ, रेडियो पे बोलता हूँ, अगर कहीं भी कोई किसी को ऐसी शिकायत हो कि उसको गाड़ी का पैसा देना पड़े, मेरा माई टेलीफोन नंबर इज़ अवेलेबल, माई ऑफिस नंबर इज़ अवेलेबल, हमारा टोल फ्री नंबर अवेलेबल है। उनका अगर ट्रांसफार्मर टाइम पे नहीं उठ रहा है, दे शुड इमीडिएटली लॉट ए कंप्लेंट कि हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, अभी तक उठा नहीं। आई विल इंश्योर सेम डे वो ट्रांसफार्मर उठ जाएगा एंड विद इन द टाइम लिमिट उनको वापस आ जाएगा। दूसरा, मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रगुजार हूँ, सफिशिएंट फंडिंग हमें मिल गई सो दैट वी आर एबल टू अपग्रेड आवर वर्कशॉप्स एज वेल एज अरेंज एमरजेंसी मटेरियल्स जो ट्रांसफार्मर में लग जाते हैं। तीसरा, हमें गवर्नमेंट ने इस बार एक और सपोर्ट दिया, वी हैड गॉट एडवांस मटेरियल जो विंटर रेस्टोरेशन में लग जाता है, वो सारे डिवीजनों को इशू किया गया और क्रिटिकल साइट्स पर वो डंप भी किया गया। चौथा, वही हमें फ्रेश बफर भी मिला इस बार और रिक्लेमेड बफर भी मिला। पांचवा, जो हमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हमने जो लोगों की सहूलियत के लिए एक नया टोल फ्री नंबर शुरू किया है। टोल फ्री नंबर में यहाँ दोहराता हूँ, 6006130506, 6006130507, 508-509-60। ये 5 नंबरों की सीरीज़ है जिस पर हमारा स्टाफ 24/7 बैठ के लोगों की कंप्लेंटें रजिस्टर करता है एंड दे गो टू कंसर्न्ड SDO थ्रू अ एप्लीकेशन एंड उसका वो रिडर्सल का जवाब भी देता है एंड देयर इज़ अ एस्केलेशन मैट्रिक्स एज वेल। तो ये हो गया डिपार्टमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स किए और क्या हम कर रहे थे। अब आपकी वक्साकत से लोगों को मैं एक गुजारिश करता हूँ कि हम डिपार्टमेंट से कॉर्पोरेशन में चेंज हो गए, जो हमारी बिलें आ जाती हैं, जो हार्ड कापीज़ आती हैं, जो लोग बैंकों पे भरते हैं अक्रॉस द काउंटर, उनसे गुजारिश है वो बैंकों में जाके हमारी बिलों की अदायगी करें। जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं JKB वेब पोर्टल पे और बिल सहूलियत पोर्टल पे, उनसे गुजारिश है कि वो ऑनलाइन बिलों की पेमेंट अदा करें। और सबसे मेरी बड़ी गुजारिश रहेगी, अभी सर्दियों के 2 महीने हमारी बकाया हैं, दिसंबर अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, जनवरी और 15 फरवरी एंडिंग फरवरी तक हमारा लोड फिर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाता है। लोगों से वही गुजारिश है कि वो गैर ज़रूरी गैजेट से इज्तनाब करें, खासकर पीक आवरों में बिजली का मुनासिब इस्तेमाल करें ताकि हम अक्रॉस द वैली लोगों की अच्छी से अच्छी खिदमत कर सकें। अभी नॉर्थ कश्मीर में हमें थोड़े से क्राइसिस चल रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ भी ट्रांसमिशन वाले काम कर रहे हैं। कोशिश है कि देलिना की ऑगमेंटेशन 15 जनवरी के आसपास हो जाएगी और नॉर्थ में अगर कुछ इस वक्त एडिशनल कट्स लग रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। Thank you So very this much. was the PDD Chief Engineer Mr. Ejaz Ahmad Sahab. He has urged the people, requested people not to misuse the electricity unnecessarily and pay the dues on time so that we can. He also told that we are going through a challenge, but we are trying our best to provide you sufficient and ensure adequate electricity. I am Sajad for Kashmir News Service with the video journalist Ejaz Lolabi from Srinagar. Thanks for watching Kashmir News Service.